اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلس، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ہمارا یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ ہمارا ساتھ دیجیے، ہمارے چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد کیجئے، ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار جیسا بھی کر سکتے ہیں ضرور کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا اس مشن میں ساتھ دیجئے۔ آج جمعرات کا دن ہے اور آج رات 9:30 بجے بیان ہوتا ہے لائیو اسی چینل پر، جس کو آپ پوری دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں دیکھتے ہیں۔ آج کے بیان کا بہت اہم عنوان ہے سودی کاروبار، بیاج پر لین دین، اس سے کتنی تباہی ہوتی ہے اور رزق کی برکتیں کیسے ختم ہو جاتی ہے، زندگی کا سکون کیسے ختم ہو جاتا ہے اور اللہ اور رسول کتنے ناراض ہوتے ہیں، اس پر آج بیان ہوگا۔ سودی اور بیاج کا لین دین پر اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس بیان کو ضرور سنیے اور اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ ہونے سے بچائیے۔ آئیے پہلی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، پورا ملک اب مودی جی کے پاکھنڈ کو سمجھ گیا اور لال قلعے کی فصیل سے جو مہیلاؤں کی عزت اور سمان کی جھوٹی باتیں کی تھی، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ لال قلعے کی بھی بے عزتی کی، آزادی کے بیان کی بھی بے عزتی کی اور بھارت کا جشن آزادی کا بھی اپمان کیا۔ لال قلعے سے بیان دیا مہیلاؤں کے احترام، عزت، سمان اور سرکشا کی، اور بیان کے فوراً بعد اپنی اسٹیٹ گجرات میں ان کی سرکار نے 11 ریپسٹ اور قاتلوں کو رہا کرنے کا، آزاد کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ قاتل بھی ایک دوسرے کو مٹھائی کھلاتے ہوئے نظر آئے۔ تو پورا بھارت مودی جی کے پاکھنڈ کو سمجھ گیا اور پوری بھارت کی مہیلائیں گجرات اور بی جے پی سرکار کے فیصلے پر تھوکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ گزشتہ کل پورے ملک میں اس کی نندا کی گئی۔ راہل گاندھی نے بھی ریئیکشن دیتے ہوئے کہا کہ اس کی ہم مخالفت کرتے رہیں گے، اور یہ بھی کہا کہ مودی جی پورے ملک نے آپ کے پاکھنڈ کو دیکھ لیا کہ آپ کا کہنا اور کرنے میں کتنا فرق ہے۔ کانگریس کے دیگر لیڈروں نے بھی اس فیصلے کی نندا کی اور تلنگانہ کے ایک منتری نے مودی جی سے کہا کہ آپ اس میں مداخلت کیجئے، انٹرفیئر کیجئے، اور آپ اگر اب خاموش رہتے ہیں تو اس کا مطلب اس پاکھنڈ فیصلے میں آپ خود شامل ہے، کیونکہ گجرات کا الیکشن قریب آ رہا ہے اور آپ گھٹیا اور نیچ فیصلے کے ذریعے سے ہندوتو بھگوا ٹولے کو خوش کر کے، ریپسٹوں قاتلوں کو آزاد کر کے مہیلاؤں کا اپمان کر رہے ہیں، لوگ یہ سمجھیں گے۔ ناظرین، ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے، گزشتہ کل پہلا ہی دن تھا اسمبلی کے اجلاس کا۔ ابھی جو باغیوں کی سرکار بنی ہے اس کا پہلا دن تھا اسمبلی کے اجلاس کا، اور پہلے ہی دن اپوزیشن نے زوردار ہنگامہ کیا اور سیڑھیوں پر بیٹھ کر، ودھان سبھا کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر نعرے لگائے،
50 खोखे, क्योंकि एक एक को 50 खोखे मिले बगावत और पाखंड के और बंडखोरी के, तो अपोजिशन ने जोरदार हंगामा करते हुए कहा कि 50 खोखे, बाकी सब ओके। असेंबली की सीढ़ियों पर हंगामा और नारेबाजी हुई है। वजीर आला शिंदे के सामने भी नारेबाजी हुई और आदित्य ठाकरे ने कहा ये बेईमान लोगों की, पाखंडियों की और बंडखोरों की हुकूमत है। तो पहले ही दिन बाकायदा फडणवीस और शिंदे यानी बीजेपी सरकार की बड़ी बेइज्जती उन्हें अपनी आंखों से देखने मिली है। आइए नाज़रीन, कर्नाटक से बड़ी नीच खबर आ रही है। जी हाँ, कर्नाटक में नीच हरकतें हो रही है। हिजाब का नीच नाटक में रोज बोलता हूं, वहीं से शुरू हुआ था क्योंकि बीजेपी की हुकूमत है। जी हां, अब वहां से खबर आ रही है कि बीजेपी के एक लीडर ने मुसलमानों को धमकी देते हुए कहा जाओ पाकिस्तान, और यह कहा कि कर्नाटक मुसलमानों के बाप की जगह नहीं। तो अब लोग कह रहे तेरे बाप की जगह नहीं है, तेरे बाप ने तो दूर दूर तक के इस मुल्क की आज़ादी और सेवा में हिस्सा ही नहीं लिया है। तो लोग रिएक्शन जता रहे हैं, लेकिन बीजेपी के इस लीडर के बयान पर लोग थूक रहे हैं कि ऐसे ऐसे खबीस और ऐसे ऐसे पाखंडी लोग बीजेपी के लीडर बने हुए हैं जो मुल्क में नफरतों का माहौल बना रहे हैं और मुसलमानों को धमकियां दे रहे हैं। तो बीजेपी के इस लीडर की लोग निंदा कर रहे हैं। बीजेपी एमएलए ने कहा कि यहाँ हालात काबू में हैं, शिमोगा में जो कुछ हुआ इसके लिए कांग्रेस काउंसिलर जिम्मेदार है, कांग्रेस मुल्क मुखालिफों की हिमायत कर रही है। यानी वो आपने कहावत सुनिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी बदमाशी आप करो, माहौल आप करो, नारे गलत आप लगाओ, मुसलमानों को धमकियां आप दो, मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की बात आप कहो, नीच और घटिया हरकतें आप करो और ठीकरा दूसरों पर फोड़ो। तो वो जो कहावत है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बीजेपी पर पूरी पूरी फिट होती हुई नजर आ रही है। आइए नाज़रीन, इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कश्मीर में पंडित भाइयों का लगातार सिलसिलावार कत्ल की खबरें हम सुन रहे हैं। जी हाँ, अब मैं आपको बताऊं कि कश्मीरी पंडित भी समझ चुके हैं ये कौन करवाता है या किसके इशारे पर होता है और ये पाखंडी खेल कौन खेल रहा है। जी हाँ, लेकिन बेचारे डायरेक्ट बोलने में शर्माते हैं। चलिए आइए, अब वहां से कश्मीरी पंडितों के कत्ल के खिलाफ आंदोलन और एहतजाज करने की खबरें आ रही है और अब कश्मीरी पंडितों के समर्थन में मुसलमान सड़कों पर उतरे हैं। जनूबी कश्मीर के शोपियान जिले से 12 किलोमीटर दूर गांव चौटीगाम के मकामी मुसलमानों ने गुज़िश्ता कल एक मकामी कश्मीरी हिंदू की शव यात्रा के दौरान दहशतगर्दों के हाथों बेगुनाहों की हलाकत के खिलाफ जोरदार मुसलमानों ने एहतजाज किया। इसे मकामी लोगों का एक अहम इक़दाम और दहशतगर्दों को पैगाम भी माना जा रहा है। अब लोग ये कह रहे हैं कि हम सब समझने लगे हैं कि कश्मीरी पंडितों का कत्ल क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किन के इशारों पर हो रहा है। खुदा करे कि पूरा मुल्क समझ जाए। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है जिससे भाजपा के अंदर क्या चल रहा है सारी पोल खुल रही है। भाजपा के अंदर अब दरारें पड़ चुकी है और बगावत के बड़े आसार नजर आ रहे हैं। जी हाँ, वजह नितिन गडकरी कद्दावर नेता और शिवराज सिंह चौहान सीएम है और कद्दावर नेता है। इन दोनों को पार्लिमानी बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और लाडले फडणवीस को, क्योंकि कामयाब बगावत और कामयाब बंडखोरी का इनाम तो मिलना है, तो कह रहे हैं कि फडणवीस को जगह मिली है पार्लिमानी बोर्ड में और नितिन गडकरी जैसे और शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े कद्दावर नेताओं को बाहर कर दिया गया है। अब दोनों रहनुमाओं को बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में भी जगह नहीं मिली है। तो इस खबर को लेकर अब सियासी गलियारों में बड़ी चर्चा हो रही है कि भाजपा में दरार बहुत जल्द पड़ सकती है और बड़ा भूचाल सामने, जलजला सामने आ सकता है, क्योंकि अब भाजपा के इन दो बड़े नेताओं को बाहर करने से चर्चा ये हो रही है कि फडणवीस को महाराष्ट्र की हुकूमत गिराने का बड़ा इनाम दिया गया और नेशनल लेवल पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन दो कद्दावर नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो जाहिर बात है इनके समर्थक नाराज तो है और बड़ा जलजला आ सकता है।
आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि जमीयत उलमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौमी सदर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब को यौम आज़ादी के मौके पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पेश किया गया। मारूफ स्कॉलर और जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर है हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब। यौम आज़ादी के मौके पर 300 से ज़्यादा तंजीमों और चेंज मेकर्स को दूसरा सालाना AMP नेशनल सोशल एक्सेलेंस अवार्ड सौंपा गया, जिसमें मौलाना अरशद मदनी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पेश किया गया। मैं आपको बताऊं कि इस तकरीब में तकरीबन 302 तंजीमों के मुख्तलिफ ज़िम्मेदारों को मुख्तलिफ अवार्ड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया, जिसमें ये बड़ी खबर सामने आई है। मैं ख़ुद भी जमीयत उलमा अरशद मदनी का जलगांव ज़िले का सदर हूँ। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष कौमी सदर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पेश किए जाने पर दिल के गहराइयों से उन्हें भी और हमारी अपनी पूरी टीम को और ये अवार्ड सौंपने वाली तंजीम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। चलिए आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है, हंसी भी आ रही है, अफसोस भी होता है, रोना भी आता है। जी हाँ, अब बड़ी खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने कह दिया कि आप सियासी पार्टियों को वादे करने से नहीं रोक सकते। जी हाँ, तो हंसी इसलिए आ रही है कि अब मोदी जी को या अमित जी को झूठ बोलने की भी पूरी इजाजत मिल गई है। और सिर्फ मोदी जी थोड़ी, सबको, तमाम सियासी पार्टियों को जितने झूठे वादे करते हैं और पब्लिक को और पूरे मुल्क को बेवकूफ़ बनाकर पब्लिक के साथ उनके जज्बात से खिलवाड़ करते हैं, अब वो और कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, बड़े बड़े झूठे वादे कर सकते हैं। झूठ बोलने के बाद 15 लाख का वादा करने के बाद में वो इतना कह सकते हैं, ये तो सियासी जुमला था, यानी झूठ बोलने की पूरी इजाजत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि उनको रोका नहीं जा सकता, वो पॉलिटिकल वादे हैं। अब पॉलिटिकल वादों में कितना झूठ होता है, कितना पाखंड होता है, मुल्क की जनता के साथ कितने बड़े धोखे होते हैं, वो सब लोगों को मालूम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने अपना मौक़िफ़ कह दिया कि हम उनको रोक नहीं सकते हैं, यानी खुल कर बोल सकते हैं, खुलकर आप झूठे वादे कर सकते हैं, पूरे मुल्क को धोखा दे सकते हैं, आपको इजाज़त है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, पहली मरतबा नेशनल न्यूज़ में मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ, इससे पहले मैं स्पेशल अलग अलग खबरें इसकी बता चुका हूँ। शिहाब छट्टूर जो केरला से पैदल चलकर, मल्लापुरम केरला से पैदल चलकर काबतुल्लाह के तवाफ़ हज के लिए 2023 के हज में शामिल होने के लिए पैदल निकल पड़े, जहां से गुजर रहे हैं, ज़ोरदार अंदाज में उनका इस्तकबाल स्वागत किया जा रहा है। लेकिन गुज़िश्ता 2 दिन पहले अजमेर के एक बदतमीज़ खादिम ने, वैसे वहाँ के कुछ खुद्दाम इतने बदतमीज़ है, बल्कि लोग तो कहते हैं जेब कतरे, लुटेरे, और ये खादिम ने जिसने शिहाब के साथ बदतमीज़ी की है, आप उसकी मूछें देखें, वीरप्पन गुंडे से कम नज़र नहीं आ रहा है। तो उसने बदतमीज़ी की, फिर पूरे मुल्क ने थूका, तब जाकर उनको शर्म आई और उन्होंने माफ़ी भी मांगी। वो वीडियो भी हमने दिखाया, बदतमीज़ी की वीडियो भी हमने दिखाया था। खैर चलिए, आइए, मुझे इस खबर में बताना मकसद ये है कि इस वक्त शिहाब राजस्थान में हैं, अजमेर के आगे निकलकर रोपनगढ़ में पहुँच चुके हैं और वो चले जा रहे हैं। उनके जज्बे को लोग सलाम कर रहे हैं, उनका इस्तकबाल भी कर रहे हैं। इस खबर को दिखाने का एक मकसद ये भी था कि यूट्यूब चैनल शिहाब छट्टूर को लेकर झूठी खबरें दिखा रहे हैं। किसी ने पाकिस्तान में दाखिल कर दिया, इमरान खान ने भी इस्तकबाल किया, तो व्यूज़ हासिल करने के लिए यूट्यूब चैनल बड़ी झूठी खबरें दिखा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी शिहाब राजस्थान के अजमेर से निकलकर रोपनगढ़ पहुंच चुके हैं और 15 अगस्त की शाम वो अजमेर में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आस्थाने पर हाजिर हुए थे और वहाँ उन्होंने अमन, सुकून और खुशहाली की दुआ दी। मगर वो पाखंडी ये कह रहा था कि यहाँ हम ही दुआ मांगते हैं, हम ही यहाँ पर सब कुछ करते हैं, यानी ख्वाजा साहब उन्हीं की सुनते हैं, ऐसा उसकी बातों से लग रहा था।
आइए नाज़रीन, आप जानते हैं कि रियासत बिहार में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी और बीजेपी जो नीच और घटिया हरकत महाराष्ट्र में करके कामयाब हुई है, वही हरकत जो है फिर वो एक मर्तबा जैसे यहाँ उद्धव ठाकरे को ख़त्म करने की साजिश की, नीतीश को भी ख़त्म करने की साजिश कर रहे थे, लेकिन नीतीश जी ने भांप लिया और फिर बिहारी मिल गए, तेजस्वी यादव और नीतीश जी ने हाथ मिला लिया और नफरती जाफरानी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया, जिसकी वजह से बीजेपी काफ़ी बौखलाई हुई है। लेकिन अभी खबर आ रही है कि अब आने वाले इलेक्शन, बिहार के लोकसभा इलेक्शन में 35 सीटें जीतने का ख्वाब बीजेपी ने, अमित शाह ने जाहिर किया है। अमित शाह और नड्डा की मौजूदगी में बिहार कोर कमेटी की मीटिंग में तफसीली बातचीत हुई है और लोकसभा इलेक्शन में 35 सीटें जीतने का ख्वाब नड्डा और अमित शाह ने जाहिर किया है। अब देखना है कि बिहार वाले कितने समझदार हैं और जैसे आज निकाल कर फेंके हैं वैसे लोकसभा से कैसे बाहर कर सकते हैं, ये बिहार वालों की अगली राजनीति बताएगी। आइए नाज़रीन, रियासत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे रिपोर्टर फैजान इलाही ने बड़ी खबर भेजी है। जी हाँ, अब कैदियों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जुर्म करके वो जब अगर जेल जाएं तो उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कैदियों को ज़बरदस्त अंदाज में सहूलत दी जाएंगी और घर जैसा खाना मिलेगा। जी हाँ, ये फैसला योगी आदित्यनाथ ने कर लिया है कि कैदियों को अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बाकायदा बीजेपी ने यानी योगी हुकूमत ने मैनुअल भी जारी कर ये बताया है कि कैदियों को बिल्कुल जेल में घर जैसा खाना मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत उनको दी जाएगी। जी हाँ, आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर गोया के कैदियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आई है। जैसे 15 अगस्त को रेपिस्टों के लिए गुजरात से बड़ी अच्छी खबर आई कि 11 के 11 रेपिस्ट, महिलाओं के सम्मान की बात करने वाली बीजेपी सरकार ने 11 के 11 रेपिस्ट को आज़ाद कर दिया है और उनकी माफ़ी का ऐलान कर दिया है। तो जैसे गुजरात में रेपिस्टों को माफ़ कर दिया गया, वैसे ही 15 अगस्त के दिन 75 साल जश्न मनाते हुए बीजेपी ने, योगी सरकार ने जेल में अच्छा खाना देने की बात कही है और घर जैसा खाना कैदियों को दिया जाएगा। यानी आप बाहर जुर्म करने में कोई हरकत नहीं, बाहर अगर जुर्म हो भी जाता है तो जेल में आपको घर जैसा खाना मिलेगा। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो पिछले 20 सालों से जम्मू और कश्मीर में काम कर रहा है। यतीमों, मोहताजों, गरीबों को माली मदद के साथ साथ उनको ट्रेनिंग्स भी करा रहा है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का ऑर्फनेज स्किल डेवलपमेंट कम एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट है, जिसका लागत का तखमीना 7 करोड़ है। इसलिए जो भी लोग मदद के काबिल हो उनसे गुजारिश की जाती है कि वो हमारे अकाउंट्स में ताउन कर सकते हैं। इंडिया के लोग हमारे लोकल अकाउंट में और इंडिया के बाहर के लोग हमारे FCRA अकाउंट में अच्छे काम के लिए ताउन करें।
क्योंकि कश्मीर में पिछले कुछ सालों से हालात सही नहीं थे, जिसकी वजह से यतीमों की तादाद में इजाफा हुआ। वो अपने पैरों पे खड़े हो और इज्जत की जिंदगी गुजारें, यही हमारी कोशिश है।